Good morning, dear students. Dear students, last class already we discussed about what rate law and molecularity of a reaction and order of a reaction and what distinguish between order and molecularity of a reaction and unit of all the rate of reaction such as first order reaction, second order reaction, third order reaction, zero order reaction. Yes or no? Last class already that one we discuss. That one little bit we have to revise. Please all of you listen carefully. First one is what? Rate law is there. What I told you, dear students, last class, rate law means what? The rate law means what? The rate law is may be defined as the relationships between rate of reaction and concentration of reactants. Yes or no, dear students? Or another definition, the rate law are actually gives the observed rate of reaction. Rate of real at a particular or indicated or actually it is observed for rate of reaction. Okay, here some example, here one example is there. So consider a general reaction, small a capital B, small b capital B, then it gives rise to small c capital C, small d capital D. Yes or no? Then this is our rate of chemical reaction. Then we have to determine the rate of reaction are proportionally like this is be there. Already I told you that one. I hope you all people shall know that. After rate law, then molecularity of a reaction. Molecularity of a reaction, dear students, already I told you it is a very important for your board examination. Sure, this question will become, all of you go and read properly. So what I told you, dear students, molecularity of a reaction means molecularity of a reaction is also defined as the number of molecules or ions or atoms which collide simultaneously bring about a chemical reaction is known as molecularity of a reaction. Such molecularity of reactions are maybe three types. One is unimolecular, second is bimolecular, third one is trimolecular. Unimolecular means what, dear students? If a reaction involves a single reactant species is known as a unimolecular reaction. Yes or no? Example already I told you, the decomposition of a nitrogen pentoxide, then it gives a nitrogen tetroxide and a half pot because it contains only one reactant species. That's why it is known as unimolecular. Second one is known as bimolecular. Bimolecular means what? Bimolecular reactions are involves two reactant species. Example, ethyl acetate is reacts with sodium hydroxide, then it gives sodium acetate and a ethyl alcohol. This is known, such reaction is known as bimolecular reaction. Trimolecular reaction means such reactions are involves three reactant species. For general reaction, 2A plus B gives rise to product. So here exponents is sorry, here molecule is 2, here molecule is 1. When they are combining to form a 3, that's why it is a trimolecular reactions. Okay, dear students. Example, 2 volume of sulfur dioxide, 1 volume of oxygen, then it gives 2 volume of sulfur trioxide. This is the molecularity of a reaction. And characteristic of molecularity of a reaction, already I told you that one. Okay, 2-3 statements is there. And order, next to order of reaction. The order of a reaction also may be depend the sum of the powers of the concentration of reactant species. Order of a reaction may be zero or a fraction or whole number. Yes or no? The order of a reaction may be first order, second order, third order, fractional or zero order. Already I told you the definition same. It is similar to the molecularity of a reaction. Its unit also there. Already that one I told you. And last things is there what? The important things is there what? The distinguish between or difference between order and molecularity of a reaction, which is very important. All of you read that one. Okay, dear students. So today I am going to teach you one interesting topic or important topic or which is very important long question. That long question name is, what do you mean by integrated rate equation, and derive an expression for integrated rate expression for a zero order reaction or either integrated rate expression for first order reaction. But first of all we should be clear the zero order reaction, then we have to go to the first order reaction. Okay, now let us start our class. Integrated rate equation. Please, dear students, all of you listen properly. I hope this question will be share come your board examination, which is very important. According to chemical kinetics, there are two importance long question is there. One is rate expression for zero order and another is rate expressions for first order reaction. Last one is collision theory of reaction is there, but which is I think during this corona system this syllabus will be deduct for your course during this corona. Okay, because short period of time
I have two question, long question is there. One is zero order, another is first order. That zero order and first order now will be discussed. Please all of you listen. Integrated rate equation. Do you know, dear students, integrated means what? Integrated is a term which is came from a mathematical term. Integration तम पढ़ी थी सेकंड ईयर. व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड? यूनाइटेड इनटू ए होल माने समस्त को केंद्रीभूत करवा एकीभूत करवा गेट टुगेदर करवा. देखो तार मीनिंग ओडिया भी मुझे लिखी दीजिए. इट्स द इंटीग्रेटेड ओडिया मीनिंग इज नोन एज एकीभूत करवा माने समस्त छिन्न विच्छिन्न होइथिबे सेमान को हमें एकाठी करवा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? The concentration dependence of rate is called a differential rate equation. What do you mean by differential rate equation? The concentration dependent माने गोटे chemical reaction रो reactant रो concentration पुनी depends करिबो काहा ऊपर पिले rate ऊपर. So that is known as a differential rate equation. Differential माने कौन पिले भिन्न भिन्न विशेषज्ञ different for रेट इक्वेशन मान डिफरेंट रेट इक्वेशन बोले आम कहवा क्या ना जदि गोटे गिवन केमिकल रिएक्शन रो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन जदि रेट ऊपर डिपेंड करिवो ताको आम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोली कहवा. ओके नेक्स्ट पॉइंट. वी इंटीग्रेट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. वी आम माने इंटीग्रेट माने कौन एकीभूत करवा बा इंटीग्रेटेड करवा क्या करवा द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को. जदि आम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट आम माने करवा टू गेट तापर आम पाइबा कौन पाइबा रिलेशन माने संपर्क रिलेशन बिटवीन के दुई जन मध्य ना रिलेशन बिटवीन डायरेक्टली सीधा सड़क भाव में क्या मध्य मोलार कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम एंड रेट कांस्टेंट ना गोटे दि जाइथिबा केमिकल रिएक्शन रे रेट कांस्टेंट आउ मोलार कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइप रो रिलेशन को ही आम पाइबा केते बेले पाइबा जेते बेले आम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करबा. बुझिपालो. when we integrate the differential rate equation then we are getting a relationship between differential molar concentration of difference time at rate constant. Please I hope you all are understand this one. This is the simple 1 mark or 2 mark question will become. What do you mean by integrated rate equation? If like this question will become means you write only 1-2 statements. Okay, this is the concept parts. Next, integrated rate expression for zero order reaction. Now it is started from मैथमेटिकल ऑर्डर सॉल्यूशन. कौन कौन पिले भल से बुझ. इंटीग्रेटेड माने इंटीग्रेटेड करवा इंटीग्रेशन करवा क्या रेट एक्सप्रेशन फॉर कार रेट को एक्सप्रेशन करवा जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट को आम इंटीग्रेटेड रे एक्सप्रेशन करवा. वी नो वेरी वेल द जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स व्हाट आई टोल्ड यू. द जीरो ऑर्डर रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट इन्फ्लुएंस दी. मु कही ना रेट ऑफ रिएक्शन तार रेटा कैटालिस्टा कांस्टेंट हो ये केबे भी इन्फ्लुएंस करिवो नाही बोली. आउ एनादर डेफिनेशन कौन थिला तार रिएक्टेंट स्पेसीस रो पावर कौन रहा पड़ो जीरो रहा पड़ो. बट वी कांट मेंशन दी केमिकल रिएक्शन रे ताको आमे कौन सी रिएक्टेंट रो भी पावरटा जीरो कर लिखि परिबा नाही किंतु जनरल रे आमे जीरो कर लिखि परिया. देखो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. कौन कहू जी इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन भितर द रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रे पुनी द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल. रेट ऑफ रिएक्शन कौन हम पुनी प्रोपोर्शनल क्या सहित प्रोपोर्शनल हम प्रोपोर्शनल माने समानुपाती क्या सहित हम टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. गोटे केमिकल रिएक्शन रो रिएक्टेंट रो जीरो पावर सहित पुनी ना रेट ऑफ रिएक्शन टा प्रोपोर्शनल हम को ऑर्डर रे जीरो ऑर्डर रे. देखो लिखि दीजिए कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स राइज टू प्रोडक्ट ना ए रो कंसंट्रेशन टार पावर केते होबाक अछि पुनी जीरो होबार अछि. देखो बिले एठी कोन देजी तो तार रेट काढिबा से जनरल रिएक्शन आर इक्वल टू माइनस डीए बाय डीटी हबो. ए होजी कंसंट्रेशन रो एटा कोन कोन मु कोन काढ लिया रेट ऑफ रिएक्शन कोन हबो माइनस डीए बाय डीटी हबो ना नहीं. दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज. तो यही मोलर यही रिएक्टेंट स्पेसीस रो रेट ऑफ रिएक्शन पुनी प्रोपोर्शनल हम क्या सहित जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ जीरो पावर मान जीरो पावर लिखली इक्वल टू माइनस डीए बाय डीटी इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटेले के आसुची जानिछ यू नो वेरी वेल व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनल देन इट विल बी फॉर्म ए के. सो के मोलर कंसंट्रेशन वे टू द पावर जीरो एंड हियर ब्रैकेट ए बॉक्स देखो गोटे ब्रैकेट करके लिखी जी बॉक्स करके मोलर कंसंट्रेशन एफ टू द पावर जीरो रो वैल्यू 1 से आम पकेबा. हुएर के को आम कौन कहबा हुएर के इज नोन एज ए रेट कांस्टेंट. ओके ओके नेक्स्ट हुएर के इज नोन एज ए रेट कांस्टेंट. वी नो वेरी वेल ऑलरेडी लास्ट क्लास आई टोल्ड यू. नाउ नेक्स्ट स्टेप
minus dA by dt equal to k into a to the power 0. We know here a value is there, then you put the a to the power concentration of a to the power 0 1. So k into 1 k minus, that implies minus dA by dt equal to k. Please all of you observe properly. Then minus dA equal to this one, denominator is nothing is there means 1, so k into dt. Okay, I hope ମୁଁ आशा କରୁଛି तुमने मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन बुझी पारुथिबो. देन डी माइनस टा कौन करी, माइनस को मु राइट साइड नहीं जी, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के dt या को दे देबी मु इक्वेशन नंबर 1. ओके बिले नेक्स्ट ए इक्वेशन नंबर 1 को कौन करिया, बोथ साइड इंटीग्रेटेड इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 को बोथ साइड उभय पार्श्व रे इंटीग्रेशन करबा. इक्वेशन नंबर 1 जहाँ देछि आगरे ताको लिखि देबो. लिखि दे साला पर बोथ साइड इंटीग्रेशन सिंबल दिया छै. इंटीग्रेशन मान जानि छो हुआ डियर स्टूडेंट्स, व्हाई इंटीग्रेशन सिंबल इज लाइक दिस एस. इंटीग्रेशन सिंबल ए भले हबार कारण कौन जानिछ, यार माने एपटे जाउथिबो गोटे वैल्यू को सूचेबो, एपटे भी गोटे वैल्यू को सूचेबो. बहुत पिला क्वेश्चन करंदी व्हाई सर इंटीग्रेशन सिंबल इज dx by dt हला नै कि s हला नै कि p हला नै कि q हला नै, s होउची कोन, यार भी रीजन अछि. तमे मैथ टीचर को पचल पाइबो. एमती हबार कारण एपटे गोटे इनफाइनाइट वैल्यू, एपटे गोटे वैल्यू को बुझेबो, आ एपटे माने दुई जन को वैल्यू मध्य रहिथिबार बिटवीन नंबर को बुझेबो. सेटा तो मैथ टीचर कहबे. सो इंटीग्रेशन ऑफ dA इक्वल टू तुम जानिछ माइनस टा कॉमन बाहर बाहर को इंटीग्रेशन ऑफ k dt. बुझी पारछ मैथमेटिकल ऑर्डर. नेक्स्ट कौन कहूँ पिले, सो कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. तार इंटीग्रेशन कले आम जानिछे इंटीग्रेशन ऑफ dA, इंटीग्रेशन ऑफ dx x लिखुछ, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA रोचे कंसंट्रेशन है, आ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के टी टी रोचे माइनस के टी प्लस लास्ट रे सी लिखा जाए जानिछ. या को दे देबो इक्वेशन नंबर 2. तुम जानिछ वेयर सी इज नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. व्हेन जेते बेले टाइम इक्वल टू 0, टी टा मान कोन टाइम इक्वल टू 0 हेले द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रो कंसंट्रेशन टा केते हिजबो, पुनी ए कंसंट्रेशन ऑफ 0 भी हिजबो. पुनी जेते बेले टाइम टा 0 हेले कंसंट्रेशन टा भी 0 हिजबो. नाउ पुट दिस वैल्यू, ए जो टाइम आ कंसंट्रेशन ए रो वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 2 रे पुट करो बोली कहूजी. इक्वेशन नंबर 2 जहाँ दी ता लिखि दियो. एडा इक्वेशन नंबर 2 तक फर्स्ट लिखि दियो कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. हेले कंसंट्रेशन ऑफ ए जगह केते पुट करिवो, ए टू द पावर ए 0 पुट करिवो. ए 0 इक्वल टू माइनस के टी जगह 0 पकेबो, काहे कि टी रो एटी नै पॉइंट के 0 प्लस सी. तो ए 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, देन सी इक्वल टू ए 0. केमती मैथमेटिक्स ऑर्डर तुम जानि पारथिबो. सो इक्वेशन नंबर 3 वेयर ए टू द पावर 0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए. रिएक्टेंट ए रो इनिशियल कंसंट्रेशन होजी कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द ए बेस 0. ओके, ये सी रो वैल्यू पळेला, ताको इक्वेशन नंबर 3 दे देबो. नेक्स्ट कोन करिया पिले, नाउ द सी वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2. ए जो सी रो वैल्यू जोडा बाहर थिला एडी बाहर जी, यार वैल्यू को पुनी इक्वेशन नंबर 2 रे पुट करिवो. 2 जहाँ दिया आइछि ताहा लिखि देबो. 2 हैला 2 कोन दिया आइछि, ए कंसंट्रेशन माइनस के टी प्लस सी. ए को ए कंसंट्रेशन इक्वल टू के टी प्लस सी रो वैल्यू केते आनिछो, सी रो वैल्यू आनिछो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए 0. तो के टी इक्वल टू प्लस माइनस कैंसल हटेबो. सो के टी को बाहर माइनस अछि, ए पड आइले प्लस हिजबो, ए टू द पावर 0 प्लस अछि, ए पड आइले माइनस हबो. सो के इक्वल टू एतिकी बाय टी टा एपड पळाइबो. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. एई क्वेश्चन श्योर एइडा नले फर्स्ट ऑर्डर आसीबो प्लीज, जेमिति भी केमिकल काइनेटिक्स रो लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो. दिस इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. क्वेश्चन एमिति आसीबो, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. पढ़ले ए सब विषय डिटेल्स लिखिदेव. ओके, थैंक यू.